and this is something, you know, because I have one of my teachers here who, you know, taught me also. So I wanted to ask you, before every role, what kind of practice do you put in, or what kind of thinking is there? You know, because all your roles are so different from everybody, from each other role. You know, that's why we want to know. Uh, I look for the stories which hits me, which has some kind of resonance. This film particularly was based on a real incident. Something happened and we were discussing about that, and we were just thinking about the accountability of the system. कभी भी कुछ होता है तो आपको अखबार में पढ़ने को मिलता है, न्यूज़ में पढ़ने को मिलता है, और किसी भी डिजास्टर से लाखों करोड़ों लोग की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, लेकिन कौन जिम्मेदार होता है हमें पता नहीं होता. तो ये फिल्म एक थ्रिलर है जी, थ्रिलर है, बट इसके कई बार क्या होता है ट्रेलर में आदमी जो फिल्म का जो बहुत अच्छा होता है सब डाल देते हैं, वो बचा कुछ नहीं रहता अंदर. इसमें सिर्फ ये थ्रिलर और इसका रिवेंज एंगल है, लेकिन इसके अंदर बाप बेटे का एक लव स्टोरी है, बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है. एंड आई कैन एश्योर यू, जिनके बच्चे हैं छोटे और ये फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है, ये फिल्म देखने के बाद बच्चा बाप से लिपट के सोएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ. बट ये जो फिल्म है, you are also touching on a lot of other issues also, other than, you know, this thing, and I think that's fantastic also. Please give me a huge round of applause. So, you know, it so happened that because of a certain piracy leak, you know, the movie Great Grand Masti got released, and you know, there was a situation that happened where the director requested that, you know, if they can swap the dates, and I think Madari is a film that, you know, believes, and it's so special that, you know, I can, you know, host for something like Madari that believes in its message to the core. I think it's fantastic, sir, you know, that you guys have done a step like that and helped another person from the fraternity out also. Yeah, because the film got leaked long back. 10 दिन पहले leak हो गई थी, and they were in panic and they wanted to come earlier, and we already shifted our date. Now it was difficult for us to shift, but then, you know, it's better not to eat into each other's business, so we shifted the date. And piracy is something government should take it very seriously. It's the greatest threat to our industry. एक तो हॉलीवुड है, वो अपने आप में बहुत बड़ी थ्रेट है, जो सारे बच्चे जो हैं सब ज़्यादातर जो हैं हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं. So that's why, you know, it should be taken very seriously. And I have to ask you this also. Nishikant Kamath as a director, how was the experience? Nishi and we have been working together for a long time. When he was in television, I did something for him. And then I worked with him in Mumbai Meri Jaan. But after Mumbai Meri Jaan, Nishikant changed his style of making. After that he made Force, then he made Drishyam, then, you know, he made another film as well. So now he's trying to make films for a larger audience. He made a Marathi film as well, which was also Le Bhari. So he's making a film which is for the larger audience. So that's how he has changed the gear, and he's a fantastic craftsman, and you'll see, you know, how he has played the thriller and emotional part, which is very strange combination. Alright, so we're going to invite a few questions. I'd request members from the media, please keep the questions related to the movie, and also the students here, if you have anything to ask, please go ahead and ask right now. We can have a few questions from the media also. Just raise your hand, please. Thank you so much. So, anyway, moving on, sir, I have to also ask you, I've been hearing the song called Damadam also in it. What is the story behind this song? How was your reaction when you heard the song for the first time? So I was involved in the song, and I requested Vishal Saab that, you know, it should be composed in a way that should relate to youth. It should become a kind of, you know, voice of youth. They have angst, they have so many questions. So the song is actually is like a party song, but the lyrics are fantastic. You must hear the lyrics, and it's asking many questions, reflecting about our country. So we have something planned also that we will want you to see after a bit. Yeah. In the meantime, can we have a few questions? Yeah, there we have a question. Why the name Madari? Madari, we were struggling with the title, and I chose a title called Dangal. And but our director Nishikant, he had some issue with it. He said Dangal in Maharashtra has a different connotation.
So he was not okay with it. So I had to, then again think. And one night I decided that जो भी हो जाए मैं आज रात को टाइटल लेके ही छोड़ूंगा. तो रात को मैंने 8-10 टाइटल्स मैंने सोचे. एंड देन मदारी, बिकॉज वी बेसिकली इन सिस्टम समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट सिस्टम और आम आदमी के साथ जो है जमूरा और मदारिया खेल चलता रहता है. वो अपने इशारों पे नशा कर देते हैं. तो कौन कब जमूरा बनता है, कौन कब मदारी बनता है, ये प्ले है इसमें. Yes. Question from back. सर आपको जानना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए फिल्म कितनी इम्पोर्टेंट है? स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई है यार हमने तो. इसीलिए मैं बार बार कॉलेज जा रहा हूँ. मैं कभी इतने कॉलेजेस नहीं गया. अब तो जब कॉलेज में पढ़ता था तब भी नहीं जाता था कॉलेज. अभी मैं ज़्यादा जा रहा हूँ कॉलेज. अच्छा, जब कॉलेज में आप थे और कभी कोई फेस्टिवल आता था तो उसके लिए आप कितने एक्साइटेड होते थे? हम कॉलेज में होते ही नहीं थे तो कैसे एक्साइटेड. हम सिर्फ फेस्टिवल के दिन अपना मुंह दिखाने, मतलब इधर उधर ताकने, लड़कियां ढूंढने, हमें कोई भाव नहीं मिलता था, कोई हमें देखता नहीं था. लेकिन वही टाइम होता था जब आप जाते थे फेस्टिवल्स वगैरह में. डिबेट्स वगैरह होती थी. एंड हमें लगता था ये कौन प्राणी है जो डिबेट कर रहे हैं. कुछ अंदाजा भी नहीं था उसका. सर अभी आप करियर के इतने ऊंचे मुकाम पर आप पहुंच गए, अभी कभी कभी आपको लगता है कि कॉलेज के दिन वापस आ जाए? अरे यार ये इससे अच्छा वक्त होता नहीं है. ये तो आदमी इस वक्त पैदा हो रहा होता है, इस वक्त फॉर्म हो रहा होता है. इस वक्त की एनर्जी जो है वो कभी नहीं आएगी लौट के. सो जितना आपको इस एज में एक्सप्लोर करना है, ये एज फिर नहीं आएगी. प्लीज हैव अ ब्लास्ट. जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना जान सकते हैं. अभी क्या होता है कि बार प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर के आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे ये बनना है. एंड देन विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग दैट इज इट योर कॉलिंग और नॉट, आप सिर्फ क्योंकि सिक्योर होने के लिए आप वो लाइन चूज कर लेते हो. एंड देन 10 साल बाद, 15 साल बाद मे बी यू हैव एस्टैब्लिश योरसेल्फ, बट यू हैव अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ एम्प्टीनेस कि यार आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू, आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू. सो दिस इज द टाइम टू चूज, दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर एंड वेट. देयर इज नो हरी. Explore yourself and find the inner calling and then dive deep, take a plunge and घुस जाओ अंदर. Yes. आपने One. लालू यादव के साथ प्रमोशन किया फिल्म का, क्या ऐसा रीजन रहा? आपने सिस्टम के खिलाफ कुछ किया, बताइए. तो लालू यादव साहब कितने रिलेवेंट लगे इस फिल्म को प्रमोट करने में? मैं और कई लोगों को मैंने न्योता भेजा. मैं जानना चाहता था एक आम आदमी की तरह. मैं मेरे सवाल है बहुत सारे, जैसे लोगों के सवाल हैं, हम वो सवाल पूछना चाहते हैं. तो किससे पूछें? बाबा रामदेव से तो पूछ नहीं सकते. उनको ही भेजा मैंने न्योता. मैंने कहा कि आपसे बात करनी है एक आम आदमी की तरह, मैं आ सकता हूँ, क्यों फिल्म ही प्रमोट करनी है अपनी, और सवाल भी पूछूंगा कि हमारी फिल्म जो है इसी बारे में है. तो मैं नाचने गाने नहीं आ रहा हूँ, अब सिर्फ सवाल करने आ रहा हूँ. मैंने मोदी जी को ही भेजा, मैंने केजरीवाल को ही भेजा इन्विटेशन. तो लालू जी का आ गया. उन्होंने कहा हाँ ईद का मौका है. उन्होंने अपना देखा होगा कुछ, पता नहीं जो भी. बातचीत हुई आपसे उनसे? वो यार पूरे फेसबुक पे अभी सारी कैसे बताऊँ, देख लीजिए आप. बहुत सारी उनसे बात हुई सिस्टम के बारे में. हमने उनके लिए 2 आइटम सॉन्ग भी रखे, वो वहीं एकदम से ध्यान में आ गए. तो एक था कि ये पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है, वो उसका राजेश खन्ना की फिल्म का. एक और है गाना, दूसरा कौन सा था याद दिलाना? वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा ही सीधा साधा. Yes. So how was it different working in Hollywood movies from Bollywood? It is very different here because that industry is making films for the world audience. So in their film the behavior or the character exposition, character build-up is much more credible and much more detailed. हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, we take a subject, but वो subject जो है launching pad होता है हीरो को हवा में उड़ने के लिए. उसके बाद उस subject से कोई लेना देना होता नहीं है. आप देखें किसी कमर्शियल फिल्म में सडनली बांग्लादेश से कितने लोग निकले और कितने मर गए और ये सारी बातें हो रही है, उसके बाद फिर कहीं चली जाती है स्टोरी. तो हमारे सब्जेक्ट को एक्सप्लोर नहीं करते हैं. अभी टाइम दूसरा है. अभी के कुछ नए डायरेक्टर्स जो हैं, दे आर मेकिंग फिल्म्स which is trying to explore the subject like नीरजा हो या अभी जो पंजाब की फिल्म थी उड़ता पंजाब, और जो हमने भी कुछ ऐसी फिल्में बनाई हैं. तो now things are changing, but basically our Indian commercial cinema it doesn't bother about to explore the subject, but Hollywood cinema has been doing it for long.
Yes. इरफान सर, आपका इस मूवी में लुक थोड़ा डिफरेंट है, आपने बाल बढ़ाए और आपकी दाढ़ी वाड़ी भी, तो उसके बारे में बताएंगे कि क्या लाइक लुक, हाँ इसमें क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ट्रिकी, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट वही था, क्योंकि कभी बाल बढ़े हुए हैं, कभी छोटे हैं। अब हमारी फिल्मों के बजट इतने बड़े तो है नहीं कि आप आराम से शूटिंग करें। वो तो मारा मारी में गोरिल्ला वॉर टाइप शूटिंग करते हैं हम लोग। तो उसमें वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एक्चुअली। और क्योंकि एक आदमी का, एक आम आदमी होते हुए देन उसके साथ क्राइसिस होता है, देन इसका जर्नी जो है उसमें उसका फिर जो है लुक चेंज है कई जगह। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग पार्ट एक्चुअली टू मेंटेन दैट। मैंने एक फिल्म की थी पान सिंह तोमर। वो फिल्म बनने के बाद 1-1.5 साल वो वहाँ यूटीवी के अंदर स्टोरेज में आराम कर रही थी। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं कई लोगों को लेकर भी गया, यूट्यूब से बात करवाई कि जो भी फिल्म है आपको अगर पसंद नहीं आ रही तो हमें दे दीजिए, जितना पैसा आपका खर्चा हुआ आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ बात करते हैं। आई वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस दैट टाइम। उस वक्त मुझे लगा कि जब भी मेरे में इतनी क्षमता हुई कि मेरा एटलीस्ट इतना कंट्रोल रहे कि मैंने अगर कुछ काम किया है तो वो लोगों को दिखा तो सकूँ, उसका डिसाइड कर, उसके डिसीजन में मेरा कुछ तो मेरा हाथ हो। ऐसा ना हो कि कोई प्रोड्यूसर के लिए आपने काम किया, वो बोल रहा है कि मैं डीवीडी पे रिलीज कर दूंगा, तो वो उस चीज़ से मैं बहुत डरा हुआ था। तो इसमें ऐसे हालात बने कि मैं प्रोड्यूसर बन सकते हैं, तो इसलिए मैं प्रोड्यूसर बना। इरफान, कितना डिफिकल्ट रहा आपसे ये प्रोड्यूसर का समय? मेरा एक्चुअली प्रोडक्शन का जो काम था वो सिर्फ इतना था कि टीम अरेंज करूँगा। बाकी पैसा वैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, उससे मैं वो अगर होगा तो मैं छोड़ दूंगा बोलना, वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ कि डायरेक्टर कौन होगा, राइटर कौन होगा, किस तरह का सेटअप होगा, इन सब क्रिएटिव डिसीजंस मैंने लिए थे। बाकी मेरा कोई नहीं योगदान नहीं है। No, not at all. No politician, no party. It's about all the parties, all the politicians and everybody. 125 करोड़। बॉम्बे में हुई, यहाँ हुई, अपना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जैसलमेर, पंजाब, 4-5 जगह पे ऐसे हुई है। Yes. सर, आप पान सिंह तोमर, you have done पान सिंह तोमर, और उसमें आप एक आर्मी से रिलेटेड उसमें थे पहले स्टार्टिंग। तो इज देयर एनी प्लान कि नेक्स्ट आप कोई डिफेंस रिलेटेड मूवीज करोगे इस पे, आर्मी ऑफिसर के ऐसा कुछ? कहानी होगी तो ज़रूर करेंगे यार। आर्मी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हमने इंटेलिजेंस एजेंसी पे एक फिल्म की थी, डी-डे रॉ, जो हमारा एनालिसिस विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कभी अगर अच्छी सब मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। आर्मी इज ए फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जब आप टीनेजर थे किसी को करते थे, फिर वो बदल गया, फिर बाद में शुरू में हम दिलीप कुमार को करते थे, फिर मिठुन चक्रवर्ती को भी बहुत करते थे। मेरा फेस किसी ने बोल दिया था, गलतफहमी दिलाई थी मुझे, गलतफहमी करवाई थी कि मेरा फेस उससे मिलता है। मैं बार बार आईना देखता था, बार बार मेरा देखता था कहाँ से मिलता है। और गलतफहमी हो जाती है, टीनेजर हो जाती है। और फिर मेरे बाल जो है बिल्कुल ऐसे हार्ड कर्ली बाल थे, उसके सीधे बाल थे ऐसे सॉफ्ट। तो मैं बहुत कई बार जाता था बाबा के पास कि यार बाल थोड़े से सीधे कर दो, कैसे भी करके। वो कर तो देते थे, एक दिन ब्लो ड्राई किया तो सीधे तो हो गए, लेकिन नेक्स्ट डे तक वो ऐसे कुछ हो जाते थे और मैं बहुत परेशान होता था। नसीर साहब ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, ब्रांडो है, फिलिप्स और हॉफमैन है, डेनियल लुइस है, लिस्ट लंबी है, महात्मा गांधी हैं, बहुत सारे लोग हैं। Sir, Abhi, when you're chilling in Hollywood, with all those, who do you admire in Hollywood right now? Like, I mean, since we all know that you have a lot of friends in Hollywood anyway. I think right now I've just done a film with Tom Hanks. And Yeah, I was going to ask you that. How was the experience? Outstanding experience, and you won't even believe what kind of person he is. He's such a nice, beautiful human being. He is. And he's so warm, and he doesn't have the insecurities which generally actor has. जो एक्टिंग की लाइन ऐसी है, इसमें कभी कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी नहीं होती है। आप 70-75 साल के हो जाएं तो भी आप स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, देखते रहते हैं कि अगली बार ऐसा तो नहीं मुझे कोई पहचानेगा नहीं। तो ये बड़ा डरा हुआ होता है एक्टर जो आदमी होता है। But something that you learned from Tom Hanks, his graciousness, yes, and his ease, the way he acts, is like the way
आर फोक एक्टर्स आर जो बहुत ज़्यादा सोचते, मतलब बहुत ज़्यादा उनका क्राफ्ट दिखता नहीं है, उनको बोलो वो इमीडिएटली कुछ भी बोलो इमीडिएटली उनके अंदर से निकाल देते। कुछ होते हैं इनबॉर्न एक्टर होते हैं, नेचुरल होता है उनमें। मुझे लगता है टॉम हैंक्स शायद उस तरह के एक्टर हैं। Okay. Anyway, so we'll move on. We have a video called Masoom Sa that we would like हाँ, to ये एक see. और गाना है, प्लीज Yes. सुनिए। मैं जो बाप बेटे के रिश्ते की बात कर रहा था, ये गाना प्लीज सुनिए। Yes, we'd like to see that, sir. You know, if you could please. आपने रिसेंटली एक सुनने में आया था कि फेसबुक या यू वेंट लाइव समवेयर शर्टलेस फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस मूवी। शर्टलेस की जाने की जरूरत नहीं मुझे। मेरे पास बहुत सारी चीजें और दिखाने की। जिस दिन कुछ नहीं बचेगा उस दिन शर्ट खोल के दिखाना शुरू करूँगा। Irfan, you're obviously known from the industry. You're known someone who always, expresses his opinion on topics, various topics. तो मुझे सिर्फ पूछना है, recently सलमान का जो रेप स्टेटमेंट का कंट्रोवर्सी हुआ था। सलमान का रेप हुआ? रेप स्टेटमेंट, he passed a rape statement. तो आके चला गया, पिक्चर भी आ गई। Yeah, I know. I think you can keep it related to the film. It would be better. I just want to ask one thing. Many from the Bollywood industry didn't wish to comment on that because they felt that they were under some pressure because it was Salman Khan. So I just want to know कि did you receive any such like? आपको सबको पता है इंडस्ट्री छुपी हुई थोड़ी है। इंडस्ट्री जैसी है, सब न्यूज़ तो आती रहती है। अभी पायरेसी का इतना बड़ा इशू है, इसी पे साथ में नहीं आ रहा है। मतलब एक तो आप गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कहाँ से पायरेसी हुई। This is their responsibility. We are paying 1,000 crore tax, 4,000 crore tax every year. So it's their responsibility, it's their accountability. But दूसरी चीज़ ये है कि इस इंडस्ट्री को साथ में आना चाहिए। बट इसी में भी नहीं है कि यार मेरी पिक्चर तो निकल गई ना, बाकी तुम जाओ बाढ़ में। तो वो है अपना एटीट्यूड, वो है तो है, क्या करें। कि बॉलीवुड सो रहा है क्या, वैसे कैसे? अब भी देश ही तो रहा है तो बॉलीवुड क्या। Yes, ma'am. आपको भी डर लग रहा है कि कहीं Ma'am, आपकी भी- one second, ma'am. Yeah, so I have a question. Recently, you had tweeted when the Dhaka attacks happened, on terrorism. So, do you think the industry is doing enough justice when it's talking about terrorism? See, it doesn't boil down to industry responsibility. It is everybody's responsibility to themselves. Either are you getting biased? Are you getting opinionated through media? That's your responsibility. You have to find facts. You have to understand what is the strength of India. Hindustan की खूबसूरती क्या है? You have to understand. And let not TV and media color your opinion. You have to understand. We are मेरा भी कुछ controversy हो गया था। And मैंने एक simple सी बात कही थी कि we lose sometimes the purpose of doing some ritual, and we blindly do it, so it distorts. कई festivals ऐसे हैं जिनका मकसद कुछ और था और आज कुछ और बन गया है। So this is what we are. That's how we are sleeping. We are not really understanding. Yes. So I have a question. The tagline of your movie, let's say, is Desh Ho Raha Hai. In which all areas in our country do you think there is that? We are not aware. We are being led by whatever is happening around us. Either consumerism आप पे फेंक दिया. Now everybody has a desire कि मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, और आपके अंदर desire जगा दिया है. You are not control of your desires. We are not in control of our desires. मीडिया ने आपको एक ओपिनियन बोली, आपको लगा कि हाँ यार ये ठीक है, मुझे बिलोंग करना चाहिए इस ग्रुप से, then you will blindly start following that group, and you will not really be critical about that. So it's your own self. You are not responsible. You are sleeping on your own self, and that's the greatest injustice you can do to yourself. You are a live human being. You have all the senses. It's the only species the God has given the faculty of understanding, analysis, thinking, subconscious. और किसी उसमें नहीं है। एक जो जानवर होता है उसको अगर बचपन में आपने कंडीशन कर दिया कि वो डरेगा तो मरते दम तक डरता रहेगा एक डंडे से। इंसान में नहीं, इंसान has a power to overcome that, to overlook that, and that's what we are not doing. Yes, we'll take one last question. We'll take one last question from the girl right there. Sir, do you miss theatre? I do miss. तब एक्चुअली मैं जब पीछे से घुस रहा था मुझे लगा NSD के दिन याद आ गए थे, and I do miss, but मुझे ना तो ऐसी स्क्रिप्ट मिली है जिसको कि मैं 1 महीना 2 महीना करूं और बोर ना हूं,
या मुझे कुछ सर्कमस्टेंसेस बने नहीं है, बट मैं करूँगा ज़रूर थिएटर, जल्दी करूँगा आपके लिए। सर सर अब तक All right, I think we're done with our round of questioning. Or you, okay. अब तक आपका सबसे डिफिकल्ट रोल कौन सा रहा है जो अभी तो यही लग रहा है कि आप लोग आ जाएं, देख लें, उसके बाद For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.